سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الفرقان سیریز کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کا واقعہ۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک جو سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کے واقعے کے بارے میں ہے، قرآن شریف میں ہے، اس سے آپ مستفید ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کا واقعہ سورہ نمل سورہ نمبر 27 اور آیات نمبر 15 سے 18 میں ہے، اور یہ واقعہ سپارہ نمبر 19 میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ان کا ترجمہ اردو میں بتایا جائے گا، اور چند الفاظ کا لفظی ترجمہ بتایا جائے گا، اور آخر میں ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اب ان آیات کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ اور یقیناً عطا کیا تھا ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی علم، اور کہا انہوں نے شکر اللہ کا جس نے فضیلت دی ہم دونوں کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر۔ اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، اور کہا سلیمان علیہ السلام نے اے لوگوں، سکھائی گئی ہیں ہمیں پرندوں کی بولیاں، اور عطا کی گئی ہیں ہمیں ہر طرح کی چیزیں، بے شک یہی ہے اللہ کا نمایاں فضل۔ اور ایک مرتبہ جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے جائزے کے لیے اس کے تمام لشکر، جو مشتمل تھے جنوں پر، انسانوں پر اور پرندوں پر، اور پھر ان کی نظم و ضبط کے ساتھ صف بندی کی گئی، اور چل پڑے حتیٰ کہ جب پہنچے وہ چیونٹیوں کی وادی میں، تو کہا ایک چیونٹی نے اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے بلوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچل دیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب چند الفاظ کا لفظی ترجمہ۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، آتینا، ہم نے عطا کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، علم۔ وقال الحمد للہ الذی، اور انہوں نے کہا کہ پاک ہے اللہ کی ذات، فضلنا، جس نے فضیلت دی، علی کثیر، بہت ساروں پر، من عبادہ المؤمنین، عبادت گزار بندوں میں سے، وورثہ، اور وراثت ملی، سلیمان و داؤد، سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی، وقال یا ایھا الناس، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگوں، علمنا، ہمیں علم دیا گیا، منطق الطیر، پرندوں کی بولی کا، وَأُوتِینَا، اور ہمیں عطا کیا گیا، من کل شیء، تمام چیزیں، ان ھذا، ان، بے شک، ھذا، یہ، لہو الفضل المبین، اللہ کی کھلی نشانیوں میں سے ہے، وحشر، اور جمع کیا گیا، لسلیمان جنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر مشتمل تھا، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، اور پھر نظم و ضبط کے ساتھ ان کو جمع کیا گیا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اتوا علی واد النمل، ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں چیونٹیوں کی وادی تھی، قالت، کہا، نملہ، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم،
अपने घरों में, ला यहतिमन्नकुम, कहीं ऐसा ना हो कि कुचल दिए जाओ, सुलेमान व जुनूदहु, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर, वहुम ला यशउरून, और उनको शऊर भी ना हो और पता भी ना चले। अब हम जो आयत तिलावत की गई और जिनका तर्जुमा किया गया, अब हम इन पे गौर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इससे हमें क्या मालूमात हासिल होती हैं, इससे हम किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आयत नंबर 15 उसमें है वलक़द आतैना दाऊदा व सुलेमाना इल्मा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यहाँ इल्म की अहमियत के बारे में बताया और ये बताया, ये फरमाया कि हमने यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को गैर मामूली इल्म अता किया और उस इल्म के ज़रिए बहुत सारे बंदों पर उन्हें फ़ज़ीलत दी। उनको अपना नबी बनाया और बरगुज़ीदा बंदा बनाया। तो सबसे पहले हमें यहाँ जो चीज़ पता चलती है वो इल्म की अहमियत है और इल्म का हासिल करना कितना ज़रूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है रब्बि ज़िदनी इल्मा, और इससे भी हमें इल्म की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इसके बाद इल्म हासिल करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो खुलूस नियत है कि इंसान अपनी नियत सही रखे, नियत साफ़ रखे, नियत पाक रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करे और इल्म हासिल करने की कोशिश करें। और यकीनन अगर ये काम किया जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म हासिल करने के रास्ते आसान कर देंगे। इसके बाद इल्म हासिल करने के लिए जब इंसान को इल्म हासिल होता है तो तमाम उलूम में वो इल्म नाफ़े इल्म है जिससे इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने परवरदिगार के करीब हो जाता है। तो ये बड़ी अहम चीज़ हमें यहाँ से पता चली कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म की अहमियत के बारे में हमें बताया। और तमाम उलूम में जो चोटी का इल्म है वो कुरान का इल्म है। इसके बाद जब किसी बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म दे और वो नाफ़े इल्म भी हो तो उसको क्या करना चाहिए, ये अगली आयत से हमें पता चलता है। तो इस आयत के बाद इल्म हासिल होने के बाद इन बरगुज़ीदा बंदों ने, अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, कि ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तूने हमें इल्म दिया और इल्म मिन जानिब अल्लाह है, और जो इल्म तूने हमें दिया उस इल्म के ज़रिए तूने हमें बहुत सारे ऐसे बंदों पे जो तेरे इबादत गुज़ार बंदे हैं उन पे हमें फ़ज़ीलत दी। तो ये बहुत अहम है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें, क्योंकि जो इल्म हासिल हुआ उसमें हम हमारी तरफ से नहीं बल्कि ये मिन जानिब अल्लाह है, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना हो तो हमें किसी भी किस्म का कोई भी इल्म नहीं मिल सकता। तो दूसरी आयत जो इसमें है वो है ववरिसा सुलेमान दाऊदा, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को वारिस बनाया गया दाऊद अलैहिस्सलाम का। और यहाँ जो विरासत की बात हो रही है वो नबूवत के हवाले से है, और यकीनन बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन जो अहम इसमें बात है वो नबूवत है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम वारिस बने, उनको वो तमाम चीज़ें मिली दाऊद अलैहिस्सलाम से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नबूवत भी मिली। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की कि ए अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता करें जो कि ना मुझसे पहले किसी को मिली हो और ना मेरे बाद किसी को मिले, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी इस दुआ को कबूल किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस आज़ी का मुज़ाहरा किया, और हमें किस आज़ी का को सीखने का यहाँ मौका मिलेगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए लोगों, हमें सिखाई गई है परिंदों की बोलियाँ और हर चीज़ हमें अता की गई है, और ये एक अल्लाह का बहुत ही वाज़ेह फ़ज़ल है। तो मुसलसल वो अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और हमारे लिए इसमें एक बहुत अहम एक मैसेज है कि हमें अल्लाह की हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जितना हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन हमें और उसमें बेहतर तौर पे अता करेंगे। इसके बाद वाक़या शुरू हुआ, जो असल वाक़ये की तरफ हम जाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक वक़्त उनके लश्कर को जमा किया गया जो जिनों पर, इंसानों पर और परिंदों पर मुश्तमिल था, और उनकी सफ़बंदी इस तरह से की गई कि इंसान सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब तरीन थे, उसके बाद जिन मौजूद थे, और परिंदे उनके ऊपर परवाज़ कर रहे थे और साया कर रहे थे लश्कर के ऊपर। ये अपनी जगह से सफ़बंदी के बाद चले और एक ऐसी जगह पर पहुँचे, एक ऐसी ज़मीन पे पहुँचे जहाँ चींटियों की वादी थी। वहाँ एक चींटी ने आते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा और बा बाकी चींटियों से कहा कि ऐ चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, मसाकिनकुम उदखुलू मसाकिनकुम
ला यहतिमन्नकुम, कहीं ऐसा ना हो कि कुचल दिए जाओ तुम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचल दे और उनको पता भी ना चले। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको जानवरों की, परिंदों की और कीड़े-मकोड़ों की बोली सिखाई गई थी, उन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल था। उन्होंने इस बात को सुना और मुस्कुराए और मुस्कुरा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उन्होंने शुक्र अदा किया। और यहाँ से हमें ये भी हम देखते हैं कि ये बड़ी अहम चीज़ है कि हमें अपने इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, उसका इल्म रखना चाहिए। यकीनन हमें जानवरों, परिंदों, कीड़े-मकोड़ों की बोली नहीं आती, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे चलने से, आगे जाने से, पीछे जाने से, अपने मूवमेंट की वजह से किस तरह का नुकसान या हम क्या तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं अपने इर्द-गिर्द के जानवरों को या इंसानों को, ये हमें नहीं पता चलता। लेकिन कम से कम हमें इस चीज़ का ज़रूर शऊर होना चाहिए कि हमारे किसी भी अमल से हमारे इर्द-गिर्द जो लोग मौजूद हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अक्सर देखा गया है कि हम रास्ते में खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने-जाने में तकलीफ़ होती है। मसाजिद में हम जाते हैं, हम इस तरह से बैठते हैं कि हम एक से ज़्यादा आदमी की जगह लेते हैं, लोगों को बैठने में तकलीफ़ होती है। बाज़ मसाजिद में जगह कम होती है और लोग इस तरह से बैठे हुए होते हैं कि ज़्यादा लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती। इसी तरह से बाज़ लोग मस्जिदों में या दूसरी जगहों पे खड़े होके बातें कर रहे होते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बातें करते हैं, जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से कोई भी हमारा अमल ऐसा ना हो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ पहुँचे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इल्म दे, हमें शुक्रगुज़ार बंदा बनाए और हमें अपने इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, इंसान हैं, उनको तकलीफ ना पहुँचाने की तौफ़ीक दे। तो उम्मीद है कि आपको आज के हमारे इस मौज़ू से आपने मुस्तफ़ीद हुए होंगे, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान शरीफ का इल्म अता फ़रमाए और उससे सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।